स्वागत है KCDC TV ते दर्शकों अज तुहानूं लैके चलते हैं खालसा यूनीवर्सिटी के ऑडिटोरीयम विच जिथे पंजाब के गवर्नर श्री गुलाब चंद जी कटारिया ते उन्हां दे नाल होर बहुत सारे डिगनेटरी जिहड़े ने पहुँच रहे ने। एक कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी खास करके स्टडी के मुद्दों नूं लैके होएगी। सो चलो दिखाने हैं जी तुहानूं ये कॉन्फ्रेंस। श्री गुलाब चंद कटारिया जी गवर्नर पंजाब ते विजिटर ऑफ खालसा यूनीवर्सिटी अमृतसर साडी यूनीवर्सिटी और खालसा संस्थावां नूं दिशा निर्देश देने वाले और अगवाई करने वाले साडे बहुत ही विजनरी प्रो चांसलर सरदार जिंदर मोहन सिंह जी शीना, यूजीसी दिल्ली तो पहुंचे जॉइंट सैकटरी डॉक्टर अनमोल अंधारे जी, साडी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी पहला रहे वाइस चांसलर ते यूजीसी सैकटरी एडवाइजर ऑफ गवर्नर पंजाब एंड वाइस चांसलर लवली प्रोफेशनल यूनीवर्सिटी डॉक्टर जसपाल सिंह जी संधू, साडे शहर की बहुत ही नामवर यूनीवर्सिटी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी दे वाइस चांसलर डॉक्टर करमजीत सिंह जी, सामने बैठे होर यूनीवर्सिटियां तो आए वाइस चांसलर साहब, साडी यूनीवर्सिटी दी सोसाइटी दे सत्कार अहुदेदार मैंबर साहबान, यूनीवर्सिटी के डीन, खालसा संस्थावां के प्रिंसीपल साहबान, फैकल्टी मैंबर के बहुत प्यारे विद्यार्थियों, सबनों सब तो पहला बहुत ही दिली प्यार भरी सत श्री अकाल। अज का दिन मैं समझदा खालसा यूनीवर्सिटी लिए बहुत हिस्टोरिकल और सुभागा दिन आ, क्योंकि साडे प्रो चांसलर सरदार जिंदर मोहन सिंह जी शीना की ये रीझ सी कि यह नवा सैशन यूनीवर्सिटी का दो पक्षों तो बहुत इंपॉर्टेंट आ। गवर्नर साहब साडे विजिटर ने यूजीसी के दिशा निर्देशों तहत यूनीवर्सिटी चलनी आ
और वो दोनों पासियां तो रिस्पैक्टेड परसनैलिटीज़ का इत्थे किसी ना किसी तरह इस तरह का कोई प्रोग्राम अरेंज करो कि उन्होंने हाजिर होना बहुत जरूरी है। Very Honorable Governor, State of Punjab, Shri Gulab Chand Kataria ji, Guest of Honor, Rajinder Mohan Singh ji Sheena, Keynote Speaker, Amol Angare ji, our own Vice Chancellor, former Vice Chancellor from GNDU and the current Vice Chancellor, GNDU, dignitaries of the dais, learned faculty members and dear students. Sir, I seek your permission to start since 1890 when, as a reformist, I have set the tone and vision of education and particularly of higher education. After facing so many slips between the cup and the lips, ultimately in 2016 the university was elected and started operationalization since last year. It is first such conference which we envisioned, taking into consideration the vision of the Khalsa College Society envisioned in 1890 to set a tone for this university for the futuristic perspective. So as a vision, being this very first year, we assure or today we expect that something should be churned about along with the quality of education about the values and the current socio-psychological issues also. In education, particularly the access, equity, quality and globalization in the context of the technological and AI advancements is perhaps will be guiding us for the future. I will be expecting today's deliberations will be throwing light upon all these issues. What the university expects from today's deliberations, sir, the first session which is presided by your good self, after this the detailed deliberations will be by the 6 panelists including the 4 vice chancellors in after lunch session. What basically as a single question we wish to draw out of it is to find those success parameters which will be determining the universities for 2035 as envisioned in our current policies. So with these brief words, I expect all you to participate, to deliberate and help us draw something concrete from those deliberations. And sir, at the last I assure that the proceedings and the recommendations of today's conference will be sent to your office and to the Higher Education Secretary also. With all these words, I once again extend welcome to all the dignitaries on and off the dais. Thank you very much. बहुत ही परम आदरणीय पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी, बहुत ही आदरणीय आज के कीनोट स्पीकर और यूजीसी के जॉइंट सेक्रेटरी श्री अनमोल आंकरे जी, खालसा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नैल सिंह जी, डॉक्टर जसपाल सिंह जी हमारे अपने ही हैं, इसी यूनिवर्सिटी में जीएनडी में प्रोफेसर रहे, इसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे और यूजीसी में सेक्रेटरी भी रहे और मेरे भाई समान हैं। इसी जीएनडी के बहुत ही सुलझे हुए वाइस चांसलर डॉक्टर करमजीत सिंह जी, अमृतसर के कमिश्नर पुलिस और प्रीत सिंह जी पुल्लर, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और मेरे साथी मैनेजमेंट में ऑफिस में सारे यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहिबान और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहिबान और सारे डीन्स और प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैंने ऐसा सब गवर्नर को मिलते रहे हैं पंजाब में, लेकिन ऐसा गवर्नर नहीं देखा जो अपने मिजाज से इतने डाउन टू अर्थ हों और जिनका खास तौर के ऊपर शिक्षा के अंदर बहुत रुझान है
और ख़ास तौर पे जो गवर्नर ने बीड़ा उठाया है पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ, वो बहुत बड़ी मेहनत सर्दियों में भी और गर्मियों में भी बॉर्डर एरिया पे जाके कर रहे हैं। ऐसा कोई गवर्नर नहीं देखा, क्योंकि गवर्नर पोस्ट एक ऐसी होती है कि अपने इत्मीनान से बैठे, लेकिन इन्होंने जो बीड़ा उठाया है वो बड़ा सराहनीय है। और मुझे जो इंटरेस्ट दिखाया है इन्होंने अमृतसर हमारे खालसा यूनिवर्सिटी की खालसा कॉलेज की बिल्डिंग में, और जो सिख रिसर्च हिस्ट्री सेंटर जिस रुचि से इन्होंने देखा है, मेरे मन में इनकी रिस्पेक्ट और बहुत बड़ी है कि इन्होंने पूरा टाइम लगाया वहाँ पर। और इनका दिल करता था कि मैं अभी और टाइम लगाऊं, लेकिन 1 बजे मेरा ख्याल इनकी फ़्लाइट है, तो उस टाइम से हमें जल्दी चलना पड़ा। आप आए, मैं आपका अपने दिल की गहराइयों से और अपने प्रेसिडेंट साहब जी से मजीठिया वो आने को तैयार थे कल तक, लेकिन उनकी वाइफ बहुत क्रिटिकल हो गई कल, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरी सीट भी बुक है, लेकिन मैं गवर्नर साहब से मेरी माफ़ी मांग लेना कि मैं आ नहीं पाऊँगा, मेरी वाइफ बहुत क्रिटिकल है, वो भी इस एज मेरे से बड़े हैं, तो वो आ नहीं सके, बड़े संत पुरुष हैं, तो उन्होंने आते तो उनको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा। फिर भी हम आपको बहुत धन्यवाद दें, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन श्री गुलाब चंद कटारिया जी, ऑनरेबल गवर्नर पंजाब, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सत्यजीत सिंह मजीठिया जी, प्रेसिडेंट खालसा कॉलेज चैरिटेबल सोसाइटी एंड चांसलर खालसा यूनिवर्सिटी, श्री राजेंद्र मोहन सिंह चीना जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी खालसा कॉलेज चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटेबल सोसाइटी एंड प्रो चांसलर खालसा यूनिवर्सिटी अमृतसर, प्रोफेसर महल सिंह, वाइस चांसलर खालसा यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल जसपाल सिंह संधू साहब, वाइस चांसलर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा, ऑनरेबल करमजीत सिंह, वाइस चांसलर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, प्रोफेसर खुशविंदर कुमार रजिस्ट्रार, द मैन बिहाइंड द शो, dignitaries of the dais, vice chancellor, deans, teachers, and dear student friends. It's indeed a privilege and honor to share my views with this august gathering on the subject of national importance, higher education policy, perspectives, navigating global challenges and national priorities. The world is changing at an unprecedented pace. Technological disruption, economic uncertainty, climate change, demographic shift, and geopolitical tensions are reshaping. खालसा विश्वविद्यालय अमृतसर के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जिसका विषय दिया है, मैं सोचता हूँ कि नई शिक्षा नीति, वैश्विक चुनौतियाँ और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं, मैं सोचता हूँ इस विषय को ऐसे तो आप में से जो विद्वान लोग हैं वही अच्छी तरह से समझा सकते, हम तो केवल अपने अनुभव से आधार पर बता सकते हैं। लेकिन आज मैं विश्वविद्यालय के जिस प्रांगण में खड़ा हूँ, सच में ये जो धरती है अमृतसर, ये पवित्र भी है, ऐतिहासिक भी है और शूरवीरों की धरती है। ऐसी धरती पर शिक्षा के इस दीपक को जलाना, और वो भी इतने लंबे समय पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारी शिक्षा के बारे में कोई सोच थी नहीं। ऐसे समय में 1890 में मैं सोचता हूँ कि ये वास्तव में जो सिंह सभा थी आपकी, उन्होंने इस विषय पर अपना मन बनाया कि हमको निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को और पंजाब को देश की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के इस मंदिर के द्वारा जो इस देश की और पंजाब की सेवा की है, उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं
कि उस समय किसी के मन में ये आना कि शिक्षा के माध्यम से हम देश की चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, केवल पढ़े लिखे इंसान नहीं पैदा करेंगे, तो उस समय की आवश्यकता के अनुसार हमारे बच्चों को संस्कारित करके खड़ा करेंगे, जो भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनका वो ठीक प्रकार से मुकाबला कर सके। इसलिए इस शिक्षा के मंदिर की स्थापना की। सच भी है कि जो संस्था देश हित के लिए प्रारंभ की गई हो, उसके बारे में अगर अड़चनें आती है तो स्वाभाविक रूप से मन में कष्ट होता है, क्योंकि ये संस्था कोई कमाने के लिए नहीं खोली। शिक्षण संस्थाएं कई चलाई जाती है आज भी देश में, वो एक तरह से शिक्षा को व्यापार बनाने के लिए चलाती है, लेकिन ये केवल और केवल समाज और पंजाब और आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा की जब सेवा की और इतनी लंबी यात्रा 144 वर्ष, मैं सोचता हूँ हमारी 3-4 पीढ़ी निकल गई हो, उन लोगों के मन में इस विचार को आया और यहाँ तक बढ़ाया, उनका बहुत अभिनंदन। सच में ये बिल्डिंग अब तक तो मैंने भी बाहर से देखी, वास्तव में मैं सोचता हूँ कि बनाने वाले व्यक्ति ने भी उस समय पता नहीं, जो आपने आर्किटेक्ट का नाम बताया जैसा हुडू लगा है, राम सिंह जी, मैं सोचता हूँ कि अब तक इतना घूमने के बाद भी देश और दुनिया को देख लिया और इस आर्किटेक्ट के अनुसार जो इतने बिल्डिंग बनाई है, वैसी बिल्डिंग अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं दी, तो वास्तव में उस आर्किटेक्ट को कितना धन्यवाद।